संस्कृत श्लोक तो बहुत पढ़ लिए. Now it's time to solve some riddles, but in the shlok format, in the Anushtup Chand Prahelikaha. So come on, start your button and then tell me the solutions before I tell you the answer of these riddles in Sanskritam. प्रिय छात्राः, नमस्ते. मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता. नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है. हमारे साथ जुड़िए. प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आरंभं कुर्मः. प्रथमा प्रहेलिका, फर्स्ट रिडल. एक चक्षुर्न काकोयं बिलम् इच्छन्न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न samudro na chandramaha. Okay, so various hints have been given. Let's try to break it into different parts, different segments, so that we at least try to guess what is the answer. First hint, eka chakshuhu, having only one eye. But na kakah ayam. This avagraha means a. Ayam is eshah. Eshah kakah na. In spite of having only one eye, like a crow, but it is not a crow, so don't guess kakah at all. So first hint, having one eye. Okay, got it. Second hint, bilam icchan. That person or the thing wants a bill, meaning a hole. Okay, who wants a hole? Like a tree, there is some hole. Okay, a snake? No, they said na pannagah. Pannagah is a word for sarpah. Sarpa always wants a hole to hide, to live. But this object or person, the solution, isn't a snake. Okay, but second hint is he or she or it wants a hole. Okay, got it. Shiyate vardhate chaiva. Shiyate arthat nashyati, to destroy, and vardhate, to increase. So this person or the thing is increasing and decreasing. Okay. So who increases and decreases? Is it the moon? Okay, Amavasya and then Purnima. So 15 days, Shukla Paksha, Krishna Paksha. It's a rotation of growing and destroying. No, because they have written na samudraha na chandrama. It is not chandrama and not samudra. Okay, high tide, low tide, normal, nothing. Samudra is cancelled in the option. So let us guess what is that word, object. Uttaram asti suchika tantuhu cha. Needle is called suchika and thread is called tantuhu. Let's see. Eka chakshu. So this is having eka chakshu, only one eye. There are no two holes, one eye, one hole. Bilam icchan. Now who wants bill? Thread. थ्रेड का ऐसे ही कोई काम है ही नहीं. अगर वो सुई के अंदर झाकर अपना काम ना कर सके तो वो निरर्थक है ना. कपड़े सिलने में, अल्टरेशन में, everywhere we need this tantuhu to go inside this bila, meaning hole. And the third hint is vardhate और शीयते. जब थ्रेड को यूज करेंगे तो थ्रेड धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो जाएगा. और जब फैक्ट्रीज में ये बनता है तो थ्रेड से ही, बहुत सारे थ्रेड से ही ये पूरा जो बंडल है वो बनता है. तो इंक्रीज भी होता है और बहुत यूज करने पर डिक्रीज भी हो जाता है. क्षीयते वर्धते, बट नॉट समुद्र एंड नॉट चंद्रमा, बट सूचिका एंड तंतुः. द्वितीया प्रहेलिका. चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धान्य भक्षणम. ओके, मजा आने वाला है क्योंकि फर्स्ट हिंट इज चतुर्मुखः, हैविंग 4 फेसेस. तो झट से हमें पता चल गया 4 मुख किसके हैं? लॉर्ड ब्रह्मा. ब्रह्मा जी है चतुर्मुख. लेकिन निराश कर दिया ना, कह दिया न च ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी नहीं है. ओके, लेट्स थिंक. ब्रह्मा जी नहीं है लेकिन 4 मुख है. ओके,
वृषारूढ़ः, वृष मीनिंग ऑक्स, बुल, उस पे आरूढ़ है, बैठे हुए है। बट वृष तो नंदी भी है, नंदी के ऊपर तो शिव भगवान बैठते हैं, तो शिव जी होंगे। लेकिन कहा न शंकर, नंदी के ऊपर बैठने वाले शिव नहीं है, ये कुछ और वृष बता रहे हैं। लेट्स सी। निर्जीवी च निराहारी, निर्जीवी मीनिंग लाइफलेस, देयर इज नो लाइफ इन दैट। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग है, इतना हमें पता चल गया। नॉन लिविंग थिंग हैविंग 4 faces, who is mounted on or climbed on a ox, having no life, निराहारी। Of course, अगर नॉन लिविंग है तो आहार नहीं लेंगे वो। So without any food. What? Okay. See, there is a twist. Nirahari, that object is not taking any ahar as in food, but dhanya bhaksharam is going on eating food grains. सिर्फ food grains खाता है, food नहीं खाता। Okay. अजस्रम, oh my God, अजस्रम is सततम, continuously, continuously वो food grains खाता है। अब ऐसी तो कौन सी ऑब्जेक्ट है, मैंने तो कभी नहीं देखा, आपको पता है? हाँ, सबके घर पे होता है, और अगर आपके घर पर नहीं है तो मम्मा आटा बनाने के लिए फ्लोर मिल पे जाती है ना, बस वही उत्तरम है। पिष्ट चक्रस्य व्यजनम, इस तरह की चक्की और चक्की के बीच में रहने वाला ये व्यजनम पंखा, वो इसका प्रहेलिका का उत्तर है। बताओ कैसे? चतुर्मुखः, इसकी जो ब्लेड्स है वो है 4, तो 4 मुंह वाली। सेकेंड हिंट वाज वृषारूढ़ः, ऑक्स पे खड़ा है। कैसे पता चलेगा? तो अंदर जो पंखे का स्टैंड है वो उसके लिए वृष समान है। वृष समान वो स्टैंड के ऊपर ये चक्र और ये 4 ब्लेड्स, तो हो गया ना पिष्ट चक्रम। यानी पिष्ट चक्रम तो चक्की के लिए, लेकिन ये चक्र का जो व्यजन है वो इस गोलाकार चक्र में जो पंखा है वो। सही बात है। सततम फूड ग्रेन्स धान्य भक्षणम करोति परंतु भोजनम न करोति जीवः नास्ति। That's why this is the correct answer. तृतीया प्रहेलिका। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो, जहां पे वो दूरगामी, दूर तक जाता है लेकिन पद नहीं है, विदाउट एनी लेग्स, without any feet, but still goes far. Okay, let's see. Saksharah, sa plus akshara. So this person or the thing knows how to read because sakshar है. Okay, so विद्वान होंगे। नहीं, बोल दिया नचा पंडितः, so person or the thing is literate, educated, but not a scholar person. Okay. अमुखः, having no mouth, no face, no mouth. But स्फुट वक्ता, स्फुट means clear, स्पष्ट, वक्ता बोलने वाला है। हो गया। Without mouth, how can that person or the thing say something? Very confusing. पैर नहीं है फिर भी दूर जाता है, एजुकेटेड है लेकिन स्कॉलर नहीं है, मुंह नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलता है। ओके, और जो जानता है वो पंडित है। सो अगर आप इसके उत्तर पहले से ही जानते हैं या अभी सोच के सही गेस कर रहे हैं तो मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर। ओके, आई रीड ऑल द कमेंट्स। यस, यू कैन जस्ट आंसर प्रहेलिका 3 एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थॉट ऑफ दीज आंसर्स। दैट्स ओके। न उत्तरम अस्ति लिखित पत्रम। लिखित पत्रम, not a blank patra, any type of letter having no legs but still travels far. और पहले जब चिट्ठियों का व्यवहार था, अभी भी आपको स्कूल में होगा लेटर राइटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी,
अभी ईमेल राइटिंग भी हो सकता है, बट सिमिलर लिखित पत्रम having no feet, no legs, still travels far, is educated, कितना सारा उसमें लिखा है, but not a scholar, उसे नहीं पता क्या लिखा है। अक्षर के साथ है, साक्षर का मीनिंग सिर्फ एजुकेटेड नहीं होता, साक्षरः मीन्स अक्षरैहि सहितम, विथ लेटर्स। सो यहाँ पे एजुकेटेड मीनिंग डायरेक्टली ना लेकर के इस आंसर के लिए साक्षर विल मीन अक्षरों के साथ है। देख सकते हैं बहुत सारे अक्षर है इसमें, अक्षरों के साथ है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, उसको नहीं पता उसमें क्या लिखा है। थर्ड हिंट वाज हैविंग नो माउथ बट स्टिल स्पीक्स क्लियरली, जिसने भी लिखा है लेटर, जिसके प्रति लिखा है उसको क्लियरली बात पहुंचा रहा है। सो स्पीक्स अ लॉट विदाउट हैविंग अ माउथ, दैट्स व्हाई लिखित पत्रम। चतुर्थी प्रहेलिका, पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलति वायुवेगेन पदम एकम न गच्छति। Very weird kind of imagination has been given. It's portrayed by this image. Hint is पर्वताग्रे रथः याति, एक रथ गच्छति जा रहा है, one chariot is going, but where? पर्वताग्रे, पर्वतस्य अग्रभागे, this is पर्वत, okay, in front of the mountain there goes one chariot, ratha, and the sarthi, let's take an example of any sarthi. For example, Krishna is the sarthi. Sarthi bhumau tishtati, the charioteer जो रथ चलाने वाले हैं वो इसमें नहीं बैठे हैं, वो सारथी नीचे खड़े हैं। Okay, he is standing not in the chariot but separately on the ground. Then also this chariot is moving where? Parvatasya agre. Okay. And what is written this? Vayu vegena chalati. The chariot is going by vayu vega, by the speed of the wind. So बहुत फास्ट ये चल रहा है और उसको चलाने वाला तो नीचे है, फिर भी वो रथ अपने आप वायु के वेग से स्पीड में भाग रहा है, चल रहा है। इतना चलने के बाद भी कहाँ ट्रैवल किया उसने? तो हमें लगेगा अब तक तो इंडिया से अमेरिका पहुंच गया होगा रथ, बट नहीं, कह रहे हैं पदम एकम, एकम पदम न गच्छति, एक भी स्टेप वो गया नहीं, फिर भी बहुत फास्ट भागा। सोचने वाली बात है, क्या कहना चाहते हैं? अस्तु उत्तरम की मस्ति, उत्तरम अस्ति कुंभकारस्य चक्रम। कथम कुंभकारस्य चक्रम? सी द फर्स्ट हिंट, पर्वताग्रे रथः याति, इट लुक्स लाइक अ रथ, अ चैरियट, वेयर पर्वतस्य अग्रभाग, वेयर इज द पर्वत? सो एषः कुंभकारः, कुंभकारः घटम। सो ये चक्र कब घूमता है? तो बीच में ये पर्वत आकार का जो पॉट है, तो पर्वतस्य अग्रभागे, तो पर्वत के आगे वाले भाग में ये रथ है, उसका सारथी उसके ऊपर नहीं है, भूमि पर है। तो सारथी कौन है? कुंभकारः। पॉटर इज द सारथी ऑफ दिस रथ। व्हाट इज द अदर हिंट? Other hint says vayu vegena chalati. Yes, it is moving in the speed of the wind, very fast rotation, spinning. But it's here only. It's not going anywhere else. किसी और के घर पे वो नहीं चले जाता है, वो यहीं का यहीं रहता है. That's why उत्तरम अस्ति कुंभकारस्य एतत् चक्रम. This chakra is called the ratha. This was very interesting. पंचमी प्रहेलिका, सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। के यू विल से ओके, श्लोक में और कुछ लिखा ही नहीं है। सुवर्णस्य सुवर्णस्य हाउ मेनी टाइम्स? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, 4 टाइम्स द सेम वर्ड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कोई और चैप्टर में नहीं, प्रहेलिका चैप्टर में है। दैट्स व्हाई कुछ तो बात होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what the suvarna word will mean for different types, because 4 टाइम बोला है, 4 अलग अलग अर्थ है, लेकिन the gist is हनुमान जी
अशोकवाटिकां गच्छति, कुत्र गच्छति? अशोकवाटिकां। अशोकवाटिकायां सीता अस्ति, सीता रामस्य प्रतीक्षां करोति, परन्तु तत्र हनुमान् आगच्छति। हनुमतः हस्ते किम् अस्ति? राम नाम मुद्रिका। हनुमान् सीतायै राम नाम मुद्रिकां ददाति। Everybody knows this. So I want all of you to write Suvarnasya, the Suvarna word 4 times, and let's try to understand the meaning. Same Suvarna word means 4 different words. First Suvarna is Su plus Varnaha. Varna का meaning होता है color. जैसे ये है कृष्ण वर्णः. What I am wearing is श्वेतः वर्णः. Peacock is चित्रितः वर्णः. Parrot is हरितः वर्णः. Sky is नीलः वर्णः. So varnaha means color. Su means sushtu, good. So su varnaha first meaning will be ऐसी मुद्रिका दे रहे हैं, ऐसी रिंग दे रहे हैं जो अच्छे रंग की हो, गुड कलर. नेक्स्ट सुवर्ण मीन्स ऑफ द वेट इक्विवेलेंट टू 80 गज. नाउ व्हाट इज 80 गज? तो मेजरमेंट के अनुसार जो एक सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है इट्स इक्विवेलेंट टू 80 रक्तिका इन संस्कृत, 80 रक्ति in Hindi, and for actual you want the weight, it's called 9.7 grams. तो इस वेट का अंगूठी हनुमान जी सीता जी को दे रहे हैं जो राम जी ने भेजी है. सुवर्ण here literally means स्वर्ण, गोल्डन. सुवर्ण स्वर्ण से बनी हुई गोल्डन रिंग है वो, और उस पे क्या लिखा है? राम ऐसा लिखा है. जो सो अच्छा, और वर्ण का मीनिंग होता है अक्षर. अच्छे अक्षर में लिखा है. कौन से अच्छे अक्षर है? सबसे पवित्र और पावन अक्षर है रा विथ कॉम्बिनेशन विथ म. राम ये अच्छा वर्ण है. तो अब सभी में मैं स्य लगा दूं तो मेन शब्द कौन सा है वो देखते हैं. संबोधन पद. हे जानकी, ओ सीते, तव रामेण मुद्रिका प्रेषिता. तुम्हारे राम ने एक रिंग भेजी है. Your Ram has sent a ring. Now all these words are having sya. Sya means of. ऐसी रिंग जो कैसी है? अच्छे रंग से बनी. 9.7 ग्राम जिसका वेट हो, गोल्डन रिंग है और जिसमें सुंदर अक्षर वाला राम अंकित है. इसीलिए ही इस प्रहेलिका का उत्तर समझना यानी ये 4 वर्ड का अर्थ समझना. नाउ सीता जी इज कन्विंस्ड. ये है राम नाम की वो मुद्रिका, 9.7 ग्राम वेट, सुंदर अक्षर, गोल्डन और अच्छा रंग. अंतिमा प्रहेलिका. This is a different type of prahelika with a lot of questions. भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्. First question. भोजन अन्ते, भोजनस्य अन्ते, after having any meal. किं पेयं, what is to be drunk. भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? आप क्या पीते हो? चाय, कॉफी, दूध, पानी? पानी पानी होगा. लेट्स सी. जयंत कस्य वै सुतः. जयंत कस्य पुत्रः. जयंत किसका बेटा है? आपकी क्लास में कोई जयंत है क्या? जरा पता लगाइए किसका बेटा है वो. यहाँ पे आप पूछा है तो बताना पड़ेगा. कथम विष्णु पदम प्रोक्तम. प्रोक्तम में 2 शब्द है, प्र एंड उक्तम. उक्तम इज सेड. सो हाउ इज द विष्णु पद सेड? विष्णु का पद कैसे बोला गया है? विष्णु का पद, द पोजीशन ऑफ विष्णु कैसे बोला गया है, बताया गया है शास्त्रों में. आपको पता है? ओके, सो 1 2 3 क्वेश्चन हुए. अरे चौथे में तो क्वेश्चन ही नहीं है और बहुत वियर्ड चीज बताई है. शक्रस्य तक्रम दुर्लभम.
शक्र कौन है पता है? इंद्र, देवताओं का राजा। ऐसे मौत से सुरापान करते हैं, लेकिन उनको किसकी कमी है पता है? तक्रम की, बटर मिल्क की। ऐसा हो भी सकता है, there is no buttermilk available in the darbar of Indra in Swarga. Very weird. So, do you want to know the answer? Okay. इसके पहले बता दूं, इस टाइप ऑफ प्रहेलिका कब बनती है? So there is a very common state and national level competition जहां चतुर्थ चरण दिया है आपको, and now you are told to form a श्लोक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चरण। अब ये अजीब सी बात सुन करके कंपटीशन में आधों से ज्यादा फेल हो जाते हैं कि हम क्या इसमें ट्राई करें, देयर इज नथिंग कॉमन हियर। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छे से ब्रेन यूज करके ऐसे 3 क्वेश्चंस बनाए जिसका आंसर लास्ट में लिखा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस प्रहेलिका का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न था भोजनांते च किम पेयम। भोजन के अंत में पानी कभी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे जठराग्नि शांत हो जाती है एंड डाइजेशन कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक बटर मिल्क, इट्स बेटर एंड द बेस्ट ऑप्शन। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। तो बचा कौन सा ऑप्शन? तक्रम, बटर मिल्क। जयंत कस्य वै सुतः। आई डोंट नो आपकी क्लास में जयंत है या नहीं, बट हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है उसमें जयंत इज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर। वो है शक्रस्य सुतः पुत्रः। शक्र इंद्र, इंद्र के बेटे का नाम जयंत है। तो जयंत किसका बेटा है? इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु का पद कैसे बताया गया है? दुर्लभम, डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू गेट। विष्णु की पोजीशन क्या कुछ कभी भी वैकेंसी आ सकती है क्या? कोई भी तपस्या करके या बहुत ज्ञान अर्जित करके विष्णु बन सकता है, भगवान बन सकते हैं कोई? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। दुर्लभम, डिफिकल्ट टू गेट, दैट पोजीशन ऑफ विष्णु इज डिफिकल्ट टू गेट। इस तरह से इसको देखा जाए तो रिडल के शक्रस्य तक्रम दुर्लभम, बटर मिल्क इज डिफिकल्ट टू गेट फॉर शक्र इंद्र। और इस तरह से देखा जाए तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्लोक के 3 चरणों का उत्तर चतुर्थ चरण में इस तरह से है। Do some Paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः।